Very first, good morning to all. Today we are here to read Chapter 2 Addition. In our previous session, we had discussed about solving of word problems. We had learned how to make statements from the given question. We had learned to comprehend the question and apply the appropriate operation. Today we will be moving ahead and solving few more word problems and learning to make few more statements. Before moving ahead, let us quickly recapitulate the basic points for solving a word problem. We had learned in the previous session that whenever in the given question we have the words in all together or total, we find the sum. We add in that question. Whenever in the question the number is not having any unit, the statement starts with number of. Keeping in view these points, let us quickly start with worksheet 5 and solve few more questions. So kids, I hope we have all geared up to start solving the few more questions of worksheet 5. So here in our first question, we have there are 2,958 men, 2,596 women, and 3,102 children in a town. What is the total population of the town? So what do we see here? What is the total? Yes, we are having the word total here. So whenever we have the term total, we add. Yes, we add in that question. Next, the second step is to check the digits, right? So here we have digits 2,958, 2,596 and 3,102. In the previous session, the question that we had taken had only two numbers. So we had to add two numbers. Here we have three. So we have already learned how to add three numbers in our previous sessions. So today we will be adding three numbers to solve this word problem. Now, first step was to check the words in all together or total in the question. And here we have the term total. So we know that we have to add. The second step is to check the numbers. Here we have already checked the numbers 2,958, 2,596 and 3,102. With each number we are not having any unit. So because we are not having any unit, so we all know that the statements will be starting with what? Yes, they will be starting with number of. So the first statement will be for the first number, that is 2,958. What does this number represent? It represents men, right? It represents men. So because this number represents men and this number is not having any unit, so the statement will be starting with number of, and this number is representing men. So the statement will be number of men is equal to 2,958. So kids, always remember, the statement that we are forming is basically representing the information which for the given number. Like for number 2958,
नंबर ऑफ मैन इज द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर 2958। हमारा जो नंबर है वो नंबर क्या है, किसके लिए है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में होती है। हम स्टेटमेंट वो बनाते हैं जिससे हम ये बता सके कि वो नंबर किस चीज का है। तो अगली स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे नंबर 2596 के लिए। अब ये जो नंबर 2596 है ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हम इसके लिए क्या स्टेटमेंट बनाएंगे। हमें वर्ड प्रॉब्लम में जो स्टेटमेंट बनानी होती है वो हम उस नंबर की इंफॉर्मेशन के लिए बनाते हैं, क्योंकि हमें ये नंबर जो दे रखे हैं 2958, 2596 एंड 3102 इनको ऐड करना है। तो हमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स बनानी है उन स्टेटमेंट में हम हमेशा वही इंफॉर्मेशन देंगे जो उस रिस्पेक्टिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट में हमने नंबर ऑफ मैन बताए हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मैन 2958 है। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें बताना है हमारे पास सेकेंड नंबर 2596 क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट आएगी वो 2596 की इंफॉर्मेशन होगी। अब ये जो 2596 है ये बता रहा है कि हमारे पास कितनी विमेन है। अब क्योंकि हमारे पास 2596 की कोई यूनिट नहीं है ना, इसके आगे केजी नहीं है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, रुपीज नहीं है, किसी भी टाइप की कोई यूनिट नहीं है, ये तो केवल नंबर ही नंबर है ना। तो इसलिए हम इसकी जो स्टेटमेंट शुरू करेंगे वो नंबर ऑफ से करेंगे। और ये नंबर किस चीज का है, ये विमेन का नंबर है कि कितनी विमेन हमारे पास है। तो इसलिए जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, वो स्टार्ट होगी नंबर ऑफ से, और ये नंबर किसका है, वुमेन का। तो सेकंड स्टेटमेंट आएगी नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल टू 2596। नाउ इट इज योर टर्न टू मेक द थर्ड स्टेटमेंट। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई, सेकंड स्टेटमेंट बनाई, अब थर्ड स्टेटमेंट आप बताओगे। 3102 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या इसमें कोई यूनिट है, नहीं है। अब क्योंकि इसमें कोई यूनिट नहीं है तो किससे स्टार्ट होगा, राइट, ये नंबर ऑफ से स्टार्ट होगा। और ये नंबर किसका है, ये चिल्ड्रन का नंबर है ना, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखा कितना आसान था, सबको बनाना आता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3102। अब आती है बात सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। अभी तो हमने पहले सेंटेंस में से 3 नंबर निकाल लिए, उन 3 नंबर की रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स भी बना ली। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो हमने सारी लिख दी। तो पहले हम वो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है। उसके बाद हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें कैलकुलेट करना होता है, जो हमें फाइंड करना होता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, माने कि पूरी पॉपुलेशन मिला करके स्टूडेंट्स, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सबको मिला करके हमारी जो पूरी पॉपुलेशन आती है वो कितनी है। अब टोटल वर्ड है तो हम ऐड करेंगे, ये हमने फर्स्ट स्टेप पे कर लिया था। लेकिन हमारी जो फाइंड करने वाली स्टेटमेंट बनेगी उसमें हम क्या लिखेंगे, ये नया है तो मैं बताऊंगी, देखो। तो इसमें हम बनाएंगे सिंपल टोटल पॉपुलेशन। सो द फोर्थ स्टेटमेंट विल बी टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर को ऐड करना है। अब अगर हमें इन 3 नंबर को ऐड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं कॉलम्स, 1000, 100, टेंस एंड वंस। उसके बाद कैरी बॉक्स बनाते हैं, फिर इन चारों नंबर को रिस्पेक्टिव प्लेसेस के अकॉर्डिंग उनमें प्लेस करके एक प्रॉपर सम क्रिएट करते हैं। और हम प्लस साइन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो हमने
सम बनाया, हमने पहले कॉलम्स बनाए, उसके बाद कैरी बॉक्स बनाया, फिर तीनों नंबर लिखे, उसके बाद हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया। जब हमने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया, टोटल पॉपुलेशन। देखा कितना आसान था। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म होगा जब हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या लिखेंगे? हाँ, जब हम आंसर स्टेटमेंट लिखेंगे। आंसर स्टेटमेंट क्या होती है? जो स्टेटमेंट हमें फाइंड करनी होती है वो वाली, मतलब यहाँ पे की फोर्थ, जो हमने फोर्थ स्टेटमेंट बनाई थी, इक्वल टू की साइन की जगह आर आ जाता है और उसके आगे आंसर। सो द आंसर स्टेटमेंट इज टोटल पॉपुलेशन इज 8656। देखा कितना आसान था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So the next question that we have is, in a library there are 2585 English storybooks, 5525 Hindi storybooks and 1235 comics. How many books are there in all? See, we found the treasure here. We found the term in all. So we know whenever we have the term in all, what do? We add, right? So in this question, we will be finding the sum. Now the next thing that we have is finding out the information in the first half of the question. पहले सेंटेंस में, पहले हाफ ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम देखेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन में 3 नंबर गिवन है। अगर हमारे पास 3 नंबर गिवन है तो मतलब हमारे पास 3 चीज़ों की इंफॉर्मेशन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में जितने नंबर होते हैं हमारे पास उतनी इंफॉर्मेशन होती हैं। तो गिवन वाली स्टेटमेंट्स उतनी ही बनती हैं जितने हमारे पास नंबर्स होते हैं। तो अब हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 नंबर हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स बनेंगी और वो 3 स्टेटमेंट्स में हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो सब कुछ मिल जाएगा। तो पहला नंबर हमारे पास है 2585। तो हमारे को इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक लाइब्रेरी में इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं, हिंदी स्टोरी बुक्स हैं और कॉमिक्स हैं, और हमें ये गिवन है कि इंग्लिश स्टोरी बुक कितनी है, हिंदी स्टोरी बुक कितनी है और कॉमिक्स कितनी है। तो हम लोगों को जो स्टेटमेंट्स बनानी है वो इन रिस्पेक्टिव नंबर्स के लिए बनानी है। पहला नंबर 2585 और इस नंबर के साथ कोई यूनिट है? नहीं है। कोई भी केजी नहीं है, ग्राम नहीं है, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है, लीटर और मिलीलीटर भी नहीं है, और यहाँ पे तो रुपीस भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी यूनिट नहीं है। जब कोई भी यूनिट नहीं होती है तो हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ से। हम तो बहुत ही स्मार्ट हो चुके हैं अब, एकदम ऐसे फटाफट से बना लेते हैं स्टेटमेंट। तो हमारी जो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी वो होगी नंबर ऑफ से। अब ये नंबर हमें किस चीज़ का है, क्या बता रहा है? ये नंबर हमें बता रहा है कि हमारे पास इंग्लिश की स्टोरी बुक्स कितनी है। सो नंबर ऑफ इंग्लिश स्टोरी बुक्स, क्योंकि इंग्लिश स्टोरी बुक्स का नंबर 2585 है, उनकी काउंट 2585 है। So we are having 2585 English story books here in the library. So to represent number 2585 in the form of a statement, we will say number of English story books. हमने 2585 की सारी इंफॉर्मेशन इस एक सेंटेंस में, इस एक स्टेटमेंट में
लिख दी और बता दिया कि नंबर ऑफ इंग्लिश स्टोरी बुक्स हमारे पास 2585 है। अब ऐसे ही हम सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे सेकंड नंबर के लिए। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है? सेकंड नंबर हमारे पास है 5525। तो अब ये जो सेकंड नंबर है 5525, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें किस चीज की काउंट बता रहा है? ये हमें बता रहा है हिंदी स्टोरी बुक्स कितनी है। हाँ, क्योंकि अब ये नंबर हमें हिंदी स्टोरी बुक्स का काउंट बता रहा है, इसलिए हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बताओ। हाँ, हम स्टेटमेंट बनाएंगे नंबर ऑफ हिंदी स्टोरी बुक्स। नंबर ऑफ क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास 5525 में कोई भी यूनिट नहीं है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट आएगी नंबर ऑफ हिंदी स्टोरी बुक्स इज इक्वल टू 5525। अब हमारे पास क्वेश्चन में आता है थर्ड नंबर, राइट। और ये थर्ड नंबर हमारे पास है 1235। तो ये 1235 हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कॉमिक्स कितनी है। क्या कितनी है? कॉमिक्स कितनी है। अब यहाँ पे भी हमारे पास कोई यूनिट नहीं है, तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगी नंबर ऑफ से, और ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमिक्स को। तो सिंपल, हमारी थर्ड स्टेटमेंट नंबर ऑफ कॉमिक्स। अरे वाह, मुझे लगता है अब तो मेरे सारे बच्चों को स्टेटमेंट बनानी आ गई है। चलो, तो अब जो लास्ट स्टेटमेंट है वो तो आप ही बनाओगे। तो हमें लास्ट स्टेटमेंट, जो ये फोर्थ स्टेटमेंट बनानी है, वो बनानी होती है सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में से, जिसमें से हमें फाइंड करना होता है, जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? बुक्स इन ऑल कितनी है, ये बताने के लिए। तो बुक्स का तो कोई लीटर, मिलीलीटर, केजी कोई यूनिट नहीं होती है। तो मुझको लगता है कि ये तो नंबर ऑफ से स्टार्ट होगी, है ना? हाँ, ये नंबर ऑफ से स्टार्ट होगी। तो नंबर ऑफ क्या? बुक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे है बुक्स, जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बुक्स, और बुक्स तो यहाँ पे भी थी, लेकिन हमें क्या बताना है? इन ऑल, टोटल, ऑल टुगेदर, पूरी बुक्स कितनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी नंबर ऑफ बुक्स इन ऑल। देखा कितना आसान था। अब मुझे बताओ कि हम कैसे बनाएंगे सम। हम सबसे पहले बनाएंगे कॉलम्स, 1000, 100, टेंस एंड वंस। उसके बाद कैरी बॉक्स। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। तो पहले कॉलम्स 1000, 100, टेंस एंड वंस, उसके बाद कॉलम्स, उसके बाद इनको प्रॉपरली हम अरेंज कर देंगे। किसमें? प्रॉपर, स्पेसिफिक, रिस्पेक्टिव कॉलम्स में। 1000 में 1000 के नंबर, जैसे कि 2, जैसे कि 5, जैसे कि 1। उसके बाद हम सारे नंबर्स को जब उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में अरेंज कर देंगे, फिर हम प्लस का साइन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कैरी लेकर ऐड करेंगे, और हमारे पास सम बन जाएगा। तो हमारे पास आया 2585 प्लस 5525, और इसमें हमने ऐड किया 1235। जब हमने इस सम को कैलकुलेट किया, सारे नंबर्स को ऐड किया, तो हमारे पास क्या आया आंसर में? हमारे पास आंसर में आया 9345। अब ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आंसर है, नंबर ऑफ बुक्स इन ऑल।
तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम अब लास्ट में करेक्ट आंसर स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। ये सो द आंसर स्टेटमेंट सेज नंबर ऑफ बुक्स इन ऑल आर 9345 9345 so we are all done with the word problem. I hope you all have learned how to make the statement, how to make the sum, how to comprehend the question, word problem को कैसे start करना है, कैसे समझना है। हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके फिर दो पार्ट्स देखेंगे, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में हमें पता चलेगा कि हमें उसमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, इन ऑल टुगेदर टोटल होगा तो हम ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन में आएंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हम देखेंगे हमें कितने नंबर्स गिवन है, हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऐसे करेंगे। नंबर देखेंगे, वो नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है वो देखेंगे और अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स बनाएंगे। I hope you loved it, you enjoyed solving the word problems और अब किसी को भी word problem solve करने में डर नहीं लगता। हम लोग नेक्स्ट सेशन में रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से सारा बेसिक। तो हम कैलकुलेट करना, ऐड करना, बेसिक कॉलम्स में अरेंज करना नंबर्स को, सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे सो दैट वी एक्सेल इन द टेस्ट इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, all the best, enjoy your day and have fun, enjoy your learning. Have a good day.